Good morning, grade 8. Today we are going to start our new topic, new chapter, algebraic expression. So, I think so you have heard about algebraic expression in the previous class already. Then even we are going to discuss about the algebra. Let's see. Algebraic expression are a combination of terms connected by the operations of addition, subtraction, multiplication or division. This is very much easy. Algebraic expression is what? It is a type of expression. Expression means what? Which can be formed with the help of some variables or some terms along with the sign, along with the operations. So same here. Algebraic expression is also we can say that are a combination of the terms. Terms you already know कि terms किसको बोलते हैं and अगर नहीं आता है then I will tell you later. By the connected by the operations you already know, plus, minus, multiply, divide, etc. So we have an example of algebraic expression 5x square minus 4x plus 9. So here term is what? 5x square. If we talk about 5x square alone, तो ये इसकी first term होगी. What about second? तो minus 4x will be the second term and plus 9 will be the third term. So in this way we can say that about the terms. So हम जब terms को connect करते हैं, आपस में जोड़ते हैं with the help of some sign, with the help of some operation, तो एक expression form होता है, इसी को हम कहते हैं algebraic expression. So in algebra we basically deals with variables, constants, coefficients and operations. So let's talk about the variables. Variables may be x, y, z, a, b, c, etc. So here we have used x and a. In two expressions we are using x as a variable and a as a variable, but you can take any of the variable for forming an expression. What about constant term? Constant term is 9, minus 1, 7, 6. It is in the form of integer. We can say that plus 9, minus 1, they all are integer without any variable. कोई वेरिएबल अगर साथ में ना हो तो वो एक सिंगल नंबर कहलाएगा, विच इज़ कॉल्ड इंटीजर, और इन अदर लैंग्वेज वी कैन कॉल इट कांस्टेंट इन एक्सप्रेशन. टर्म्स, एज आई टोल्ड यू, टर्म्स बता चुका हूँ मैं आपको क्या है. व्हाट अबाउट लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स? तो लाइक टर्म्स विच हैव द सेम वेरिएबल्स विद द सेम पावर. लाइक टर्म्स किनको कहते हैं? जिन टर्म्स में उनकी वेरिएबल सेम हो. अगर x है तो दूसरा भी x ही होना चाहिए विद द सेम पावर एज वेल. उनकी पावर भी सेम होना चाहिए. जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट दिस टू टर्म 5x स्क्वायर एंड माइनस 4x, दे आर नॉट लाइक. वाई दे आर नॉट लाइक? बिकॉज यहाँ पे पावर वेरिएबल्स तो सेम है x एंड x, बट द पावर्स आर डिफरेंट. यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, इसलिए ये लाइक टर्म्स नहीं कहलाएंगे. बट अगर x और 4x की बात करूँ, x और माइनस 4x, तो दे बोथ आर द लाइक टर्म्स बिकॉज दोनों में वेरिएबल x है और पावर भी दोनों की 1 है, इसलिए ये लाइक टर्म्स कहलाएंगे. एग्जाम्पल 2x स्क्वायर वाई एंड 5x स्क्वायर वाई, तो दे टू आर द लाइक टर्म्स. वन मोर एग्जाम्पल, माइनस 9x वाई स्क्वायर एंड 3y स्क्वायर एक्स. यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 2 है. x की पावर 1 है, x की पावर 1 है. ऑर्डर चेंज है बट पावर तो सेम है ना दोनों की, और वेरिएबल्स आर ऑल्सो सेम, दैट्स वाई दे आर लाइक टर्म्स. व्हाट अबाउट अनलाइक टर्म्स? अनलाइक इसका अपोजिट होगा. जहाँ पर पावर्स डिफरेंट होगी तो अनलाइक हो जाएगा, वेरिएबल डिफरेंट होंगे तो अनलाइक हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पर x और y दोनों में है बट पावर अलग अलग है. x की 2 है, यहाँ पे y की 2 है. यहाँ y 1 है, यहाँ x 1 है, तो दे आर द अनलाइक टर्म्स. What about types of algebraic expression? So the first type is monomial, second type is binomial, third is trinomial. Monomial means one term. It is easy, very easy. Monomial means one. Mono means one term, जिसमें एक ही टर्म होती है. 6x एक टर्म. Binomial means two terms. Binomial two terms, जिसमें दो टर्म्स है, 6x plus 9. अब यहाँ पर कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आपके हिसाब से. Trinomials थ्री टर्म्स, 6x plus 9 plus x स्क्वायर. यहाँ पे थ्री टर्म्स है, 1, 2 and 3. तो आप आगे यहाँ वाई स्क्वायर भी ले सकते हो, यहाँ वाई ले सकते हो, बट थ्री टर्म्स होना जरूरी है फॉर ट्राइनोमियल. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. व्हाट अबाउट द फोर टर्म्स? अगर फोर टर्म्स होती है, 5 टर्म्स होती है, तो वी कैन कॉल इट, एज आई टोल्ड यू, पॉलिनोमियल. हमने पहले पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल, और नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता देता हूँ. पॉलिनोमियल हम वी कैन कॉल इट पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स होता है बहुत सारे. हम देखते हैं आगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ मोर देन वन टर्म. हालांकि वन टर्म से ज़्यादा टर्म्स को, जैसे बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, इनको भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉलिनोमियल डेफिनेशन. तो मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. पॉली मीन्स मैनी. अगर मैनी, वन से ज़्यादा की बात होती तो मोनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं हम उसको. मोनोमियल को मोनोमियल कहेंगे. व्हाट अबाउट डिग्री?
हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज इन अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री किसको कहा गया है? किसी भी एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ होती है? सपोज यहाँ पे x की पावर 2 है, x की पावर 4, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ पे पावर ही नहीं है, यहाँ पे x ही नहीं है, तो x की पावर 0 सपोज करेंगे यहाँ पर हम, तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी? 4 है, तो 4 विल बी द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो कहलाएगी वो 4 कहलाएगी। वेरी इजी। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑन डिग्री। अभी यहाँ पर हम वापस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे, बट बेसिस ऑन डिग्री। अभी हमने जो बात करी थी वो सिंपल बेसिस ऑन टर्म्स बात करी थी। जितनी टर्म्स बढ़ती जा रही थी वैसे उनके नाम चेंज हो रहे थे, बट यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं बेसिस ऑन डिग्री, डिग्री की बेसिस पर। लेट्स सी, लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? जिसकी डिग्री 1 होगी। एग्जाम्पल देख सकते हैं y+9 या 3x+2, यहाँ पर दोनों की डिग्री 1 है, y भी 1 है पावर में, यहाँ पे x की पावर में 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएंगे। व्हाट अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? सेकंड इज क्वाड्रेटिक, तो डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 होती है जिस पॉलिनोमियल की, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा गया है। हियर यू कैन सी दोनों में डिग्री 2 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स 3, डिग्री जिसकी 3 होती है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। यू कैन सी हियर इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री 3 है, दैट मीन्स वी कैन कॉल इट क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक। कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री 0, जहाँ पर डिग्री 0 होती है। अब डिग्री 0 अभी तक हमने नहीं देखा एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पर एक देख सकते हैं 7x⁴ और 7। एक 7 सिंगल नंबर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, बट मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जो कांस्टेंट होता है उसमें भी हम x वेरिएबल पुट कर सकते हैं विद एक्सपोनेंट 0। वी कैन राइट लाइक दिस 7 एज 7x⁴, क्योंकि बिकॉज 7x⁴ की वैल्यू होती है 1, और जब 7 में 1 मल्टीप्लाई होगा तो 7 ही आंसर आना है। सो इट इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि कांस्टेंट 7 इज द कांस्टेंट नंबर, और वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस ऑल्सो। तो डिग्री 0 यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इफ़ पॉलिनोमियल इन्वॉल्व्स 2 और मोर वेरिएबल्स, हाँ, अगर हम बात करें 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो, 1 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो, तो हम उसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो वी हैव वन बेस्ट एग्जाम्पल हियर, 4a²b 9a³ b², 3ab² -ab+5। तो हम सभी टर्म्स को अलग अलग लिख लेंगे और अकॉर्डिंग टू टर्म्स हम देखेंगे कि इस टर्म में कितनी पावर्स बन रही है। सपोज a⁴ हो, b⁴ 1, तो 2 और 1 मिलकर 2 + 1 मिलकर 3 बन रहा है। इन सेकेंड टर्म 3 भी पावर है, 2 भी पावर है, तो दोनों की पावर प्लस हो जाएगी, तो 3 + 2 विल बी 5। तो सेकेंड टर्म में 5 पावर आ रही है, थर्ड में 3 आ रही है, फोर्थ में 2 आ रही है, और 5 इज़ द कांस्टेंट, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो डिग्री 0 होती है, तो यहाँ पर पावर 0 हो गई ना। अब हम चेक करेंगे सबसे हाईएस्ट कौन सा नंबर है, 5। कौन से टर्म में आ रहा है? सेकेंड टर्म में, मतलब यहाँ पर। दैट मीन्स इसकी डिग्री जो होगी इस पूरे पॉलिनोमियल की वो कितनी होगी? 5 होगी, क्योंकि प्लस करने पर, वेरिएबल्स की पावर्स को प्लस करने पर ही फाइनल डिग्री निकलेगी। सो हैंस वी कैन से दैट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5. So thank you so much for today's topic. I hope you understood today's concept of algebraic expression, types of expression, basis on degree and basis on terms. Thank you so much.